Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, we are starting our third lecture uh, of the chapter number 16, that is alternating current. In this topic, basically, we have to study the AC circuits and its components. First of all, we should recall the chapter number 13, where we have studied the direct current and its basic components, and we know the basic component of the DC circuits is resistor that can control the value of the voltage and the current, and we have the relation over there, that is Ohm's law, V is equal to IR, and by this we can calculate the values of the V and the I, or in the different situations of the R. But in AC circuits, instead of resistors, we are also having the inductor and the capacitor. Means we are having these three basic components in the AC circuits by which we can control the value of the voltage and the current. So students, we have to discuss all these components one by one. First of all, we will talk about the AC through resistors. Means we are having the circuit that is provided with AC source and resistor is there. So in this topic, what are the key points that we have to discuss? First of all, we must know what is the resistive circuit and what is its circuit diagram, and we will have to explain this circuit diagram and the values of the voltage and the current in this circuit diagram. The next point that we have to discuss, we have to draw their waveforms of the voltage and the current, and then we have to make the conclusions about their phase. The next one, we have to draw their phasor diagram, means the phasor representation, and at the end we will have to talk about the power dissipations. There are some components, there are some points that we have to keep in mind when we are studying all of these circuits. Means we have to study the circuits which are having the resistors or inductors or the capacitor, or they may have the combination of these elements such as an inductor and the capacitor, resistor and the capacitor, or resistor and the inductor, etc., or all these three circuits which we will be study in the RLC circuit. But some points are common in all these discussions. We have to talk about their circuit diagram. We have to talk about, we have to give their introduction, what kind of the circuits we are talking about, and we have to talk about their waveform, especially regarding voltage and the current, because our main target in all these topics and the discussions in all these circuits and their components, our main target is to discuss the value of the voltage and the current. And again, we have to discuss the power, the resistance, the value of the current, the voltage, etc., and we have to draw the phasor diagrams in each case, in each circuits. So these were the points that we will be discussing in each our AC circuit. So first of all, we come to the point and we have to discuss the first point, what is the resistive circuit. The concept is so simple. If the AC circuit, means the circuit that is provided with the AC source, is called AC circuit. If the AC circuit is provided the resistor, or we can say a circuit having the resistor as a component, and AC circuit having the resistor as a component, मीन्स एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें जिसमें रेजिस्टर शामिल हो, जिसमें रेजिस्टर्स मौजूद हों, तो इस किस्म के सर्किट को हम रेजिस्टिव सर्किट बोलते हैं. यहाँ रेजिस्टर से क्या मुराद है? यहाँ रेजिस्टर से मुराद ज़रूरी नहीं है कि हम किसी वायर की बात कर रहे होंगे, किसी टिपिकली रेजिस्टर की बात कर रहे होंगे. इसमें कुछ भी हो सकता है. जैसे डायग्राम में नीचे जो लेफ़्ट साइड पे डायग्राम है वहाँ पे रेजिस्टर दिखाया गया है, और जो राइट साइड पे जो डायग्राम है वहाँ पे बल्ब दिखाया गया है. Because bulb is having the filament, and the filament is regarded as a resistor. So in these kinds in this kind of this AC circuit, there must be the resistor in its components. Next we have to show the circuit diagram. Simple, आपको जो दिखाई गई है इसमें एक सोर्स दिखाया गया है,
एसी सोर्स, और एसी सोर्स के साथ एक रेजिस्टर दिखाया गया है in the left hand side of this diagram of this slide, and on the right side we can see the bulb with the AC source along with its key. मीन्स कि एक सिंपल सी डायग्राम है जिसमें दो कंपोनेंट्स बेसिकली हम लोगों ने दिखाए हैं, एक है एसी सोर्स और दूसरा है उसका रेजिस्टर। तो रेजिस्टर्स के हवाले से याद रखिएगा, व्हाट इज़ अ रेजिस्टिव सर्किट मीन्स AC circuit having the resistor as a component is called resistive circuit. और resistor में भी wire, में भी bulb, में भी anything else. Students, जिस तरीके से हमने इसको डिफाइन किए हैं व्हाट इज़ अ रेजिस्टिव सर्किट, बिल्कुल सेम पॉइंट होगा जो हम अगले लेक्चर्स में जाकर डिस्कस कर रहे होंगे, जहाँ पे हम बात कर रहे होंगे व्हाट इज़ इंडक्टिव सर्किट, व्हाट इज़ कैपेसिटिव सर्किट एट्सेट्रा। मीन्स जो पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारे तमाम चैप्टर्स में इसी किस्म के पॉइंट्स होंगे, इसी किस्म की सर्किट डायग्राम्स होंगी। अगेन फेजर डायग्राम्स को डिस्कस करना होगा, वेव फॉर्म हमें बनानी होगी, हमें वोल्टेज के हवाले से, करंट और रेजिस्टेंस के हवाले से बात करनी होगी, हमें पावर डिसिपेशन के हवाले से बात करनी होगी। तो ये कंसेप्ट अगर आप ग्रास्प करें और इनको दिमाग में, जहन में रखें, तो जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो आपको बहुत ईजी लगेंगे। नेक्स्ट वी हैव टू एक्सप्लेन what is the matter that we have to discuss in the explanation. Just we have to discuss the value of the voltages and the current, because I have told you earlier the main target in this discussion in these circuits is that we have to discuss the value of the voltage and the current. So again in this expression we will talk about the value of the voltage and the current, and this circuit is posed in the form of the question, what are the voltages, or what is the voltage delivered by the source to the resistor. तो इस किस्म का ये क्वेश्चन है, इसको अगर हम देखें तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इससे पिछले टॉपिक्स के हवाले से कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है, दैट इज़ वी नॉट इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। और इस इक्वेशन ने हमें क्या बताया था कि वैल्यू ऑफ द वोल्टेज मीन्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज बेसिकली इज़ द फंक्शन ऑफ द साइन ऑफ थीटा। मीन्स के वैल्यू ऑफ द वोल्टेज थीटा के साथ साथ, टाइम के साथ साथ चेंज होती है, थ्रू आउट द साइकिल एक जैसी नहीं रहती। तो ये जो कंक्लूजन बनाया है हमने, ये ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन बनाया है, दैट इज वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। मीन्स voltage delivered is a function of sine of theta and the voltage graph would be similar to the sine curve. इस साइन कर्व के साथ मिलता जुलता होगा। अभी स्क्रीन पे जो आपको कर्व दिखाया गया है हम इसको साइन कर्व बोलते हैं, इसमें हाफ साइकिल पॉजिटिव है, हाफ साइकिल नेगेटिव है और ये स्टार्ट होता है ज़ीरो से। तो हमारा जो वोल्टेज का अगर हम ग्राफ बनाएंगे वो इस साइन कर्व के साथ मिलता जुलता होगा। तो नेक्स्ट स्टेज पे स्लाइड पे हमें वोल्टेज कर्व दिखाया गया है। At the top, just for the similarity, I have shown the sine curve that is in the red color. The voltage curve is blue, and you can see both of the cycles are having similarity. Means they are starting from the zero, and the values of the voltage is changing from time to time. और इस कर्व में आप इसको देख सकते हैं at the angle of 90 degree pi by 2 radians. The curve is achieving its peak value at the angle of 180 degree pi radian. The curve is having zero value, and then at the angle of 270 degree, that is 3 by 2 pi radians, it is having its negative peak value, and the angle of 360 degree at the 2 pi radians, again the voltage is ज़ीरो। सो द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज गो ऑन चेंजिंग। और ये याद रखिएगा, हमें जो ग्राफ मिलता है एक साइन कर्व मिलता है, एक वेव फॉर्म मिलता है, और ये बेसिकली उस इक्वेशन की वजह से है जिसको हमने प्रेडिक्ट किया, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। सेकेंड कंपोनेंट जो हमारा टारगेट है वोल्टेज के हवाले से हमने इस सर्किट में डिस्कस करना है वो है हमारा करंट। और करंट के हवाले से हम बात करेंगे कि करंट की वैल्यू क्या होगी। अगेन स्टूडेंट्स, अगर हम इक्वेशन को यूज़ करें जो अभी हमने लिखी, v इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, v इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, अगर इस इक्वेशन में दोनों तरफ r से डिवाइड कर दिया जाए तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, v बाय r इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा बाय r। अगेन इन द थर्ड स्टेप, v बाय r इज़ इक्वल टू वी नॉट बाय r साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स, वी नॉट बाय r क्या चीज़ होगी, वी नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज डिवाइडेड बाय r।
तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट को ज़ाहिर करता है, वी नॉट बाई आर, आई नॉट को ज़ाहिर करता है। सो हमारी क्वेश्चन बन जाएगी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। तो देखें ये क्वेश्चन हमारी पहली क्वेश्चन की तरह वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा से मैच करती है। और ये क्वेश्चन से अगर हम कंक्लूजन बनाएं तो हमारा कंक्लूजन अगेन पहले ही क्वेश्चन जैसा होगा कि इसमें जो हमें कर्व मिलेगा वो साइन कर्व की तरह मिलेगा। वोल्टेज में भी जो हमें कर्व मिला था वो साइन कर्व की तरह मिला था। तो इन केस ऑफ करंट भी हमें जो वोल्टेज जो कर्व मिलेगा वो साइन कर्व की तरह मिलेगा। तो कंक्लूजन में हमने सेम सेंटेंस दोहराया कि करंट डिलीवर्ड is a function of sine of theta and the current graph would be similar to that of the sine curve। Again मैंने यहाँ पे sine curve ही दिखाया है to have the similarity with that the current curve। नेक्स्ट स्लाइड पे हमें करंट कर्व दिखाया गया है। अगेन आप देख सकते हैं कि ये भी एक साइन कर्व है, एक वेव फॉर्म है जिसमें इसकी वैल्यूज़ जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती हैं। करंट की वैल्यू आप देखते हैं एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री पीक वैल्यू है 180 पे 0 होती है, 270 पे अगेन पीक वैल्यू है टुवर्ड्स द नेगेटिव हाफ साइकिल, मिड पॉइंट से नीचे आ रहा है तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल होगा एंड 360 पे ये फिर 0 हो जाती है। मतलब ये दोनों कर्व्स जो हमें मिले हैं वोल्टेज के और करंट के, इन दोनों में एक क्लोज सिमिलैरिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट वी हैव टू, हमने अभी जो डिस्कस किया है उनके वेव फॉर्म्स के हवाले से डिस्कस किया है। और अगर इनकी दोनों वेव फॉर्म्स में अगर हम देखें तो हमें क्या चीज़ पता चलती है, या अगर हम इनके फेस के हवाले से बात करना चाहें तो हम क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो उसके हवाले से नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाई गई है। वोल्टेज एंड द करंट आर इन फेज इन द प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ये हमारा कंक्लूजन है। जब हम बोलते हैं कि दे आर इन फेज, तो इन फेज का मतलब क्या होता है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फेज शिफ्ट, फेज डिफरेंस, लैग फेज, लीड फेज, इन फेज, आउट ऑफ फेज, ये सारी टर्म्स हम इससे पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ इन फेज से क्या मतलब है, इन फेज का मतलब था जो हमने लास्ट टाइम भी अपने लेक्चर में समझा था कि बोथ ऑफ द वैल्यूज़ आर हैविंग देयर पीक वैल्यूज़ एट द सेम टाइम, बोथ कर्व्स are attaining their peak values at the same time, both curves are attaining their zero values at the same time, both curves are attaining their negative peak values at the same time। मीन्स दोनों कर्व एक साथ अपनी ज़ीरो वैल्यू पे होते हैं, एक साथ अपने पीक वैल्यू को अटेन करते हैं, एक साथ अपनी नेक्स्ट ज़ीरो वैल्यू पे, फिर एक साथ नेक्स्ट at the angle of 270 degree they are attaining, they are having their negative peak values and then they are also having the zero values, means they are in phase। और यहाँ इस डायग्राम में भी देखें तो आपको दिखाया गया है जो अपर कर्व है वो वोल्टेज के हवाले से है, जो लोअर कर्व है वो करंट के हवाले से है। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि इन दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो क्या होगा, और उसके हवाले से हमने कहा कि दे आर इन फेज मीन्स दे आर अटेनिंग देयर ईच ऑफ द वैल्यूज सिमल्टेनियसली विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। और ग्राफ में हमें ये दिखाया गया है कि एट द एंगल ऑफ पाई बाय 2 रेडियंस मीन्स 90 डिग्री दे आर हैविंग देयर पीक वैल्यूज, एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री मीन्स 5 रेडियंस बोथ ऑफ द कर्व्स आर हैविंग द जीरो वैल्यूज, एंड देन 3 by 2 pi are 270 degree they are also having their negative peak values and so on। तो ये आपने इस कंसेप्ट यहाँ पे ग्रास्प करना है कि ये दोनों कर्व्स इन फेस हैं। अगर ये आप कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे कि ये क्यों इन फेस हैं और इन फेस होने का मतलब क्या होता है, तो यही चीज़ जब हम नेक्स्ट अपने लेक्चर्स को डिस्कस कर रहे होंगे तो स्टूडेंट्स उसमें आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इस कर्व के हवाले से एक और बात है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं कि हमें जो वोल्टेज कर्व है वो अ लिटिल बिट हायर दिखाया गया है, मींस उसकी पीक वैल्यू ज़्यादा है, और हमारे पास जो रेजिस्टर है उसकी पीक वैल्यू कम है। इस कंसेप्ट को समझाने के लिए कि करंट की पीक वैल्यू कम है और वोल्टेज की पीक वैल्यू हमने यहाँ पे ज़्यादा दिखाई है, उसकी क्या रीज़न हो सकती है, इसको राइट साइड पे मैंने कुछ समझाने की, लिखने की ब्लू कलर में कोशिश की है आपको आइडिया दे सकूं। और हम सलाह के मुताबिक आप जानते हैं V इक्वल टू आई आर होता है, और अगर R की वैल्यू 1 से बड़ी हो, R की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो तो उसका मतलब ये है, फिर आप कंपैरिजन करें V और I का, तो कौन सी चीज़ ज़्यादा होगी, तो V की वैल्यू I से ज़्यादा होगी। लेकिन अगर R की वैल्यू 1 से कम हो जाए तो फिर करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। लेकिन अमूमी तौर पर जो हमारे पास सर्किट्स होते हैं उनमें जो रेजिस्टेंस होती है वो किलो ओहम्स में होती है, मेगा ओहम्स में होती है, मींस रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है जो हमारे सर्किट्स में होते हैं।
अगर हम उसको 1 ओम से ज़्यादा रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे, आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर हम कंसिडर करेंगे, तो हमारे पास वी की जो पीक वैल्यू है नो डाउट करंट की पीक वैल्यू से ज़्यादा बनेगी। इस कंसेप्ट को जहन में रखिएगा तो आपको समझने में आसानी रहेगी कि वाई द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज़ हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। तो इस स्लाइड पे हमने दो चीज़ें सीखी। नंबर एक के वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, व्हाट डज इट मीन, और सेकंड चीज़ ये है कि व्हाई द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज हायर एज कंपेयर टू द करंट्स पीक वैल्यू। मूविंग नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द फेजर डायग्राम। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोग फेजर के बारे में पढ़ चुके हैं, और फेजर में हमने कहा था कि इट इज़ द vectorial representations of the phases of the alternating quantities, means के alternating quantities को अगर phase में दिखाया जाए, अगर vectors में दिखाया जाए alternating quantities को, उनके different phases को अगर vectors की शक्ल में दिखाया जाए तो ये vectorial representation of the alternating quantity कहलाता है, या इसको हम phasor कहते हैं। तो हम जितने भी सर्किट्स पढ़ेंगे इन तमाम सर्किट्स में हमने phasor डायग्राम भी डिस्कस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सर्किट में जो आज हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में, दैट इज़ एसी थ्रू रजिस्टर, इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं आप इनको तमाम को अपने जहन में लाजमन रखें और उन कंसेप्ट्स को क्लियर रखें, क्योंकि उसके बाद आने वाले तमाम सर्किट्स में हम सेम टॉपिक्स को ऑन द सेम वे, ऑन द सेम पैटर्न और द मैनर हम उनको एक्सप्लेन कर रहे होंगे। मीन्स के डिफरेंसेस होंगे नो डाउट, बट क्राइटेरिया जो होगा वो हमारा तमाम सर्किट्स में सेम एक जैसा होगा। तो जब हम एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट की फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हम ये देखते हैं, क्योंकि वो इन फेज था, हमने देखा इसके लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि वोल्टेज एंड द करंट आर इन फेज, मीन दे आर हैविंग देयर पीक वैल्यूज एट द सेम टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब फेजर डायग्राम दिखाएंगे तो हम वोल्टेज को और करंट को सेम डायरेक्शन में दिखाएंगे। हमारी बुक में दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की गई हैं, एग्जैक्टली वैसा भी हम इसको दिखा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस दोनों वेक्टर्स को, आर वेक्टर को, आई वेक्टर को, गालिबन एक लाइट और एक पर्पल दो शेड्स आपको दिखाए गए हैं, तो दोनों को एक ही लाइन में दिखाया गया है, जो कि जाहिर करता है कि दे आर इन फेज। और दूसरी चीज़ कि जो वेक्टर वी आर है उसकी लेंथ ज़्यादा है और वेक्टर जो आई आर है उसकी लेंथ कम है। अगेन हमें पता है कि लेंथ ऑफ द वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और द करंट, मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट अल्टरनेटिव क्वांटिटी जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो हमारे करंट की, हमारे उस वेक्टर की लेंथ जो है उसके बराबर होनी चाहिए। और इसको ओमेगा अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको डायग्राम में रोटेट करता हुआ भी दिखाया गया है। और निचली वाले डायग्राम में अगेन एक एसी आपको जो रेजिस्टिव सर्किट है वो दिखाया गया है और उसकी फेजर डायग्राम आपको दिखाई गई है, और वहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को, मींस के वोल्टेज और करंट को एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि वोल्टेज की वैल्यू 100 वोल्ट्स है और करंट की वैल्यू 2 एम्पेयर है एट द एंगल ऑफ द 30 डिग्री, बट they are changing, they are having their new values at the same time and they would be achieving their peak values at the same time and they would having their zero values at the same time। फेजर का मतलब ये नहीं होता कि उनकी दोनों की वैल्यूज सेम होंगी। जैसे अगर करंट अगर इस पे वोल्टेज अगर 100 वोल्ट्स हैं तो हमारे पास करंट की वैल्यू भी 100 होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इनकी वैल्यूज नो डाउट डिफरेंट होंगी, बट पॉइंट ये है कि दे आर अचीविंग देयर पीक वैल्यूज at the same time, they are having their negative values at the same time। This was about the phasor diagram। Next is the power dissipation। Students, चैप्टर नंबर 3 को अगर हम रिकॉल करें तो चैप्टर नंबर 3 में पावर के हवाले से हमने 3 फार्मूले पढ़े थे। एक फार्मूला था पावर्स का कि पावर इक्वल टू द आई स्क्वायर आर, फिर हमने पढ़ा पावर इक्वल टू द वी स्क्वायर बाय आर, फिर हमने पढ़ा पावर इक्वल टू द आई आर। इसमें जो पहली इक्वेशन है पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा करंट कांस्टेंट होता है। और पावर की सेकंड इक्वेशन दैट इज़ वी स्क्वायर बाय आर हम अमूमी तौर पर वहाँ पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट होते हैं। इसी तरह जो पावर इक्वल टू आई आर होता है वो हमारी एक जनरल इक्वेशन है, जनरल फार्मूला है जो हम किसी भी कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पावर डेसिपेशन के हवाले से ये जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं इसको जहन में रखिएगा। अगेन नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पावर पॉजिटिव हो सकती है, पावर नेगेटिव हो सकती है। अगर पावर का
हमारे पास कैलकुलेशन पासिव होता है। इसका मतलब क्या है? मीन्स पावर इज़ डेसिपेटेड। डेसिपेटेड का मतलब क्या होता है? पावर इज़ बीइंग वेस्टेड, ये ज़ाया हो रही है। और इसका मतलब क्या बनता है? इट इज़ नॉट बीइंग डिलीवर्ड टू द सर्किट आर इट कैन नॉट स्टोर द एनर्जी। मतलब अगर हम ये कहें कि पावर की जब सेंस आती है, पावर की जब सेंस आती है कि ये पॉसिटिव है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंडक्टर की तरह, कैपेसिटर की तरह ये एनर्जी को स्टोर करने की सलाहियत नहीं रखता। मीन्स इट इज़ डिलीवर्ड। और जब पावर नेगेटिव होती है, इसका मतलब ये होता है इट इज़ नीदर डेसिपेटेड नॉर वेस्टेड बट डिलीवर्ड टू दिस सर्किट। मीन्स इट कैन बी unrequired, it have the ability, the component is having the ability to store the power। तो ये पावर के हवाले से कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो कि हम चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन्हीं कंसेप्ट्स को हम यूज़ करेंगे और हम पावर को समझने की कोशिश करेंगे इन केस ऑफ द प्योर रेजिस्टिव सर्किट। इस डायग्राम में आपको दो साइन कर्व्स दिखाए गए हैं। गालिबन एक ग्रीन कलर का है, एक रेड कलर का है। जो ग्रीन कलर का है वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, जो रेड कलर का है जो वो करंट के लिए दिखाया गया है। और इस डायग्राम में हमने इनके वेव फॉर्म्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है और हर एक हिस्से के लिए एक ग्रीन कलर का एरो जो है वो वहाँ पे लग रहा है। और आपने इस तमाम सेगमेंट्स में नोट करना है कि इसमें वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ क्या बनती हैं, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू हैव द एक्सप्रेशन ऑफ द पावर, तो पावर का एक्सप्रेशन क्या बनता है। फॉर एग्जांपल अगर पहले सेगमेंट में देखा जाए तो पहले सेगमेंट में देखा जाए तो ज़रा सा और से देखिए, समझिए इसको कि यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों अपनी मिड लाइन से चूँकि ऊपर हैं तो पॉजिटिव कंसिडर किए जाएंगे। मीन्स वी भी पॉजिटिव है और आई भी पॉजिटिव है। इस केस में अगर आई और वी को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास पावर आई वी होगा। मीन्स कि पावर का एक्सप्रेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें क्वार्टर में देखें तो उसमें भी हमारे पास अगेन पॉजिटिव वोल्टेज और करंट दोनों पीक्स जो हैं ये हमारी मिड लाइन से ऊपर हैं। मिड लाइन से ऊपर पॉजिटिव रीजन होता है, मीन्स ये दोनों पॉजिटिव हैं। अगेन जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो पावर होगी पॉजिटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन इसमें भी पावर जो है वो दोनों में हमने पहले दोनों क्वार्टर्स में देखा कि पावर पॉजिटिव है, और पावर पॉजिटिव का मतलब होता है कि इट इज़ बीइंग वेस्टेड, इट इज़ नॉट बीइंग डिलीवर्ड, इट इज़ नॉट बीइंग स्टोर्ड, इट इज़ बीइंग वेस्टेड। और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा कि यहाँ पे दोनों जो कर्व्स हैं रेड एंड द ग्रीन ये मिड लाइन से नीचे हैं। मीन्स के नेगेटिव रीजन में होंगे। अब वोल्टेज भी नेगेटिव है और आई भी नेगेटिव है। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस के साथ फिर पॉजिटिव हो जाता है। मीन्स पावर का एक्सप्रेशन फिर पॉजिटिव होगा। और इसी तरह जो फोर्थ क्वाड्रेंट है या क्वार्टर है उसमें भी हमने देखा दोनों वैल्यूज़ पावर की वोल्टेज की नेगेटिव हैं और पावर का एक्सप्रेशन फिर हमारे पास पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें आपने रेजिस्टर लगाया है उसके तमाम जो है वो साइकिल के अंदर, उसके साइकिल के तमाम हिस्सों के अंदर, तमाम क्वार्टर्स के अंदर अगर हम पावर को कैलकुलेट करें तो इन ईच स्टेप, इन ईच केस, इन ईच क्वार्टर द वैल्यू, द एक्सप्रेशन ऑफ द पावर इज़ पॉजिटिव। तो कंक्लूजन क्या बनता है? कंक्लूजन ये बनता है कि पावर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। मीन्स रेजिस्टर इज पावर डेसिपेटर। हमारा जो रेजिस्टर है वो पावर डेसिपेटर है। इट कैन नॉट स्टोर एनर्जी लाइक कैपेसिटर और इंडक्टर। तो पावर के हवाले से इस बेसिक आइडिया को याद रखिएगा। हम नेक्स्ट फेज में जाके जब डिस्कस कर रहे होंगे अगले चैप्टर्स को, टॉपिक्स को, तो उसमें भी हम सेम पावर डेसिपेशन और जो है वो पावर डिलीवरेंस के हवाले से डिस्कस करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।